हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बी गुड ओईटी के हिंदी वाले चैनल पे। मेरा नाम है अरविंद एंड आज हम करने वाले हैं टॉन्सिलेक्टमी केस पे एक रोल प्ले। एंड वो रोल प्ले करने वाली है अनपिन और प्रमिता मैम। तो अभी आप रोल प्ले देखिए है, हम मिलते हैं एक्सप्लेनेशन के टाइम पे। So, in today's role play, we are going to deal with a known case where the patient's post-operative care is discussed with a bystander. So, let's see how successful Anpin is in reassuring the bystander. So, Anpin, here is your role play card, and you have exactly 3 minutes for your preparation and 5 minutes for your presentation. Your time starts now. Good morning, Miss Susan. Good morning. I'm Anpin John and I'm one of the registered nurses working in this pediatrics ward, and I will be the assigned nurse for Michael today. So, how is Michael? Nurse, Michael is not very well. He is not very alert. I feel like he's having a fever and he's finding it very difficult to swallow fluid. I think so he's having some health issues, nurse. Okay, Miss Susan, I can understand that you're worried, but Michael is recovering quite well. Okay, and there is a high chance to get infections if he stays in this hospital. So, it is better that you take care of him at his home. Is that okay with you? Nurse, I will not be able to take care of Michael like you. You are a health professional. I can understand that you're insecure about taking care of your own child, Miss Susan, but you'll be able to take care of your child after the instructions we give you. We will give you a detailed instruction of the medicines that Michael requires, the food habits that he should follow, and all other details regarding his recovery. So you'll be able to take care of him quite well on your own. So don't worry about that. So first of all, I want to explain about the medicines. So right now, as a painkiller, the doctor has prescribed Tylenol for Michael. For the first few days, he will not be able to swallow anything. So I suggest that you crush the pills and dilute it in water so it will be easier for Michael to take. Okay? All of the information regarding the medicine and the frequency of when to give these medicines to Michael will be given in an instruction list, and I will make sure that you get this list before Michael's discharge. Is that okay with you? Okay, nurse. Okay, nurse, I will do accordingly. But then, if his pain is going to be worsened in the next few days, what should I do? Is there any precautionary measures that I should keep in mind? Miss Susan, there's a less likely chance that his pain will worsen. But if you do notice something like that, if Michael does complain about something like that, I strongly recommend that you consult a doctor. So the recovery process might take about 10 to 20 days, and during this recovery period, there will be some bad days and some good days. So don't be too anxious about the situation. Is that okay with you? Okay, nurse, I'll keep that in mind. But nurse, his friends are waiting to see him. Can I allow his friends to meet him during the recovery period? I strongly recommend against that, Miss Susan, right now. So during the recovery period, like I mentioned before, there's a higher chance to get some kind of infections if you allow visitors. So I recommend that you isolate Michael from all visitors during the recovery period. And after the 10 to 20 days, you can allow Michael to continue his normal schedule. Before that, if you could, please come for a follow-up. Is there any additional measures that will help him to attain a speedy recovery? Sure, I'll explain about the dietary patterns that would be helpful in his recovery process. It would be better if you avoid any solid food and any hot food, as it might aggravate his pain. Okay, increases intensity of pain. So I recommend that you give only liquid food or semi-solid food, and try to give more cold food items like ice cream. It could be helpful in your son's situation. How does that sound? Okay, nurse. I hope I have clarified all your doubts. Do you have any other queries? No, nurse. If you have any other questions, please don't hesitate to press the buzzer and I will be here to help you. Thank you, Miss Susan. Thank you. सो वेलकम टू द एक्सप्लेनेशन सेशन एंड आई होप यू एन्जॉयड द रोल प्ले। तो उस रोल प्ले में हो क्या रहा था, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इस केस में माइकल बोल के एक लड़का था एंड उसका टॉन्सिलेक्टमी का सर्जरी हुआ था। द सर्जरी ऑफ द प्रोसीजर इटसेल्फ इज कॉल्ड टॉन्सिलेक्टमी। एंड द टॉन्सिलेक्टमी के बाद उसको रूम में लेके आया गया है, एंड रूम एज इन हिज वार्ड और समथिंग, एंड वहाँ पर उसका बाईस्टैंडर दैट इज हिज मदर इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो अब एज अ नर्स आप जाके बाईस्टैंडर से बात करोगे, ना ही कि उस बच्चे से जिसका सर्जरी हुआ था। तो किस बारे में बात करना है, हो क्या रहा था इस क्वेश्चन में, वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया होगा, क्योंकि देयर वेर लॉट्स ऑफ की इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया था क्वेश्चन में?
जैसे कि उस बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स फ़िलहाल फेस हो रहा है, जैसे कि थ्रोट पेन, पानी नहीं पी पा रहा, टेम्परेचर है, इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली। उसके अलावा पेन के लिए उसको टैबलेट भी दिया जा रहा है लाइक टाइलेनॉल। एंड अदर देन दैट एक मेजर बात उसमें बताई जा रही है, एंड वो ये है कि हिज मदर, दैट इज़ अपने माइकल का मम्मी सूजन, शी इज़ रियली वरीड फॉर हर चाइल्ड। वो एक्चुअली डरी हुई है कि ओके मेरे बेटे को हो क्या रहा है यहाँ पर, इज़ ही गोना बी ऑल राइट, हो क्या रहा है, क्यों इसका तबीयत ऐसा ख़राब है। एंड अभी हम लोग का काम है कि हम लोग को उनको एश्योर करना है, उनको शांत करना है, उनको बात बताना है कि आपका बेटे के साथ जो भी हो रहा है दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। एंड उसके बाद आपको साइड से ये बात भी बोलना है कि आपके बेटे को आप घर लेके जा सकते हो, क्योंकि दिस होल केस रिवॉल्व्स अराउंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ऑपरेशन या सर्जरी के बाद बेटे का, दैट इज़ पेशेंट का या माइकल का ध्यान कैसे रखा जाए, वो है इस क्वेश्चन का मेन मोटो, उस बारे में बताना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा आगे से। दैट इज़ नर्स आई है मदर से मिलने के लिए, और यू कैन सी पेशेंट से मिलने के लिए। सो जैसे पेशेंट आएगी, पेशेंट का पहला काम क्या होगा कि उसको जानना होगा कि माइकल कैसा कर रहा है, क्योंकि हम लोग का काम एक्चुअली मम्मी का ध्यान देना नहीं, बट पेशेंट का ध्यान रखना है। अब क्या पेशेंट जवाब दे पाएगा? नो। सो विल बी टॉकिंग टू सूजन, दैट इज पेशेंट का मम्मी। सो हाउ इज इट गोना बी? सिंपल। सो हाय सूजन, हाउ इज माइकल डूइंग? हाय सूजन, हाउ इज माइकल डूइंग? माइकल कैसा है? माइकल ठीक है कि नहीं? अब वही पूछना चाहते हो। एंड देन क्वेश्चन हम लोग को पता है कि मम्मी तो अब थोड़ी दुखी एक्ट करने वाली है, दुखी एक्ट या दुखी होने वाली है। नर्स, आई डोंट नो व्हाट टू से। His condition isn't fine. He has temperature. He was complaining about pain while he was trying to sip some water. And also he's not responding properly. वो पानी पीते हुए कंप्लेन कर रहा था कि उसको दर्द हो रहा है, उसका टेम्परेचर है, एंड वो ठीक से रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है। तो नर्स क्या गलत है इसके साथ? देखिए, शी इज़ अ मदर, इट इज़ नॉर्मल फॉर हर टू बी कंसर्न फॉर हर चाइल्ड, राइट? अगर अभी आपको कुछ होगा कि आपका मम्मी पापा वोंट दे बी कंसर्न कि ओ माय गॉड मेरी बेटी, मेरा बेटा ठीक है कि नहीं, is she gonna be all right? So that's a genuine concern, right? So assure her कि ऐसा कुछ बात नहीं है. Miss Sarah, you being a mother, your concern for your child is quite valid. But please rest assured, the problems and symptoms that your son is showcasing right now is quite normal and is an expected outcome of this surgery. जो भी अभी आपका बेटा दिखा रहा है प्रॉब्लम्स एंड ऑल, जो भी उस हम लोग को दिख रहा है, टेम्परेचर है और नहीं तो उसको पानी पीने में दिक्कत हो रही है, ये सब एक्सपेक्टेड आउटकम है एक सर्जरी का। सो प्लीज़ आप ज़्यादा टेंशन मत लो। एंड उसके लिए क्या दिया जा रहा है? टाइलेनॉल, एंड ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग मेडिकेशन सच एज टाइलेनॉल फॉर द पेन। सो ट्राई नॉट टू बी वरीड अबाउट हिज कंडीशन। In fact, his condition is so fine and his condition is stable that the doctor is preparing materials for his discharge. डॉक्टर अभी पेपर वर्क से नॉट कर रहे हैं इसके डिस्चार्ज के लिए, ठीक है? सी हम लोग उसके मम्मी को ये बता रहे थे कि आपका बेटा पूरा ठीक है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड तभी हम लोगों ने स्लाइड से ये भी बता दिया कि ही इज़ रेडी फॉर द डिस्चार्ज। ओके, वी जस्ट स्लिड into the conversation. So is the mother okay with it? No, right? Because it's clearly mentioned in the question that she is somewhat reluctant. वो नहीं चाहती है कि उसके बेटे को घर लेके गया जाए। तो आपको बताना होगा उसके मम्मी को कि नहीं, ऑल दिस क्रॉस कंटेमिनेशन एंड एवरीथिंग, उन सब का खतरा बना रहा है, तो आप यहाँ पर मत रखो। You have to understand, Miss Susan, that your son's condition is quite stable now, and if we keep him here, if we keep him admitted in the hospital itself, there's a high chance that he may get infection from some other patient, and that will be bad for him. So okay, mummy mane ko tai, fine nurse, to whatever you want, okay, I'll take him home. But then here is like इस point से अभी आपका main question start हो रहा है। इस क्वेश्चन का मेन मोटो ये नहीं था, ये बताना नहीं था कि पेशेंट कैसा है, मम्मी को जाके पेशेंट के बारे में बताना, वो नहीं था इस क्वेश्चन का मेन मोटो। इस क्वेश्चन का मेन मोटो था पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ऑपरेशन के बाद पेशेंट का ख्याल कैसा रखा जाए, वो है इस क्वेश्चन का मेन मोटो। एंड अभी आप सब लोग नर्स, हम सब लोग नर्स है, राइट? तो क्या है मेन पॉइंट्स जो आते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर? जब हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में किसी भी क्वेश्चन, किसी भी रोल पे, किसी भी सिनेरियो में हम लोग जब भी बात करते हैं तो किस बारे में बोलते हैं? मेन की पॉइंट्स कुछ तो होंगे, राइट? यस, इस केस में वैसे कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहला
इट्स मेडिकेशन. सारे दवाई को टाइम पे देना पड़ेगा. किस टाइप की दवाई कैसे दिया जाए ये सब हम लोग को एक्सप्लेन करना होगा. आफ्टर दैट डाइट, किस किस्म का खाना खिलाया जाए, कौन सा खाना अच्छा होगा, कौन सा खाना खाना अच्छा है, कौन सा खाना नहीं खिलाना होगा. रेस्ट, आफ्टर ऑपरेशन रेस्ट का बहुत ज़रूरत तो है. अब मैं ऑपरेशन के बाद लेट अस अज्यूम कि मेरे पैरों में कुछ ऑपरेशन, आई हैड अ नी सर्जरी एंड मैं भाग रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ बाहर. या दैट्स अ बैड न्यूज़. ओके, दैट्स अ रियली रियली बैड न्यूज़. मेरा पैर टूटने वाला है और नहीं तो मैं वापस हॉस्पिटलाइज होने वाला हूँ. एंड देन देयर इज़ फॉलो अप. रेस्ट सब लिए हो, टाइम पे मेडिसिन लिए, टाइम पे खाना खाए, तो अब जाके डॉक्टर से भी मिल लो कि डॉक्टर क्या मेरा पैर ठीक हो चुका है, एंड दिस केस गला. डॉक्टर क्या मेरे बेटे का गला ठीक हो चुका है, क्या आप ये मेरे से ठीक से बात कर सकते हैं, क्या इसको मैं वापस म्यूज़िक क्लासेस के लिए भेज सकती हूँ. जस्ट एजम्पशन, क्या पता ये करता है म्यूज़िक क्लास. तो हाँ, ये है पोस्ट ऑपरेटिव केयर. हम लोग को इन सब के बारे में डिटेल्स में जानना पड़ेगा. अब डिटेल्स में कैसे जाने, अब सारी चीज़ें तो क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं. यूज़ योर ओन लॉजिक एंड यूज़ योर ओन नॉलेज. हम सब लोग, एज आई सेड, यू गाइज आर नर्सेस राइट, सो आप लोग को कुछ तो आइडिया होगा इन सब के बारे में, होना ही पड़ेगा इसके बारे में. आफ्टर ऑल यू चूज OET एग्जामिनेशन राइट. तो आपने ध्यान दिया होगा कि बाकी के जो टास्क थे क्वेश्चन में वो भी इन्हीं सब के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. अबाउट मेडिकेशन, कैसे मेडिकेशन को एडमिनिस्टर किया जाए, किस किस्म का खाना खिलाया जाए, एंड देन वोकल रेस्ट एंड एवरीथिंग राइट. सो लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट, मेडिकेशन. ठीक है, मेडिकेशन. सो अब आप लोग को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा मेडिकेशन दिया जाने वाला है, क्योंकि वो डॉक्टर्स के हाथ में है. डॉक्टर्स बोलेंगे कि ये वाला मेडिकेशन दो, वो दो, पैरासिटामोल दो या क्या दो. इट्स अप टू डॉक्टर राइट. सो यू कैन स्टार्ट विद द टास्क लाइक thank you Miss Sarah, thank you for your willingness to finally take Michael home. And now I would like to inform you how to administer these medications, and you don't have to worry about the specifics of the medications. Those details will be provided along with the discharge summary by the doctor at the time of discharge. Right now, you mentioned earlier, आपने थोड़े पहले बताया था, that your child is having trouble swallowing water while drinking water, right? So देखिए, अभी एक टॉन्सिलेक्टमी का सर्जरी ख़त्म हुआ है. That's done in the throat region. तो ये कॉमन बात है कि आप वो खा या पी नहीं पाएगा ठीक से. तो अब मैं टैबलेट्स कैसे दूँ, इतने बड़े तो होते हैं एंटीबायोटिक्स, कैसे खिलाया जाए. सिंपल, क्रश इट. So Miss Susan, to administer the medication, I would suggest you to crush the tablets and mix or dilute it in a bit of water and make your son drink it. Why? Because that way his surgical site won't hurt and the medication will also work its magic. क्योंकि अब वो कुछ निगल तो नहीं पाएगा, तो क्या कीजिएगा, मेडिकेशन को जो है उसका थोड़ा पाउडर फॉर्म में बना लीजिएगा, क्रश करके पाउडर बना लीजिएगा एंड उसको आप थोड़े से पानी में घोल के दे दीजिएगा. अगेन थोड़े से पानी में आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक टैबलेट एक ग्लास पानी में डजंट लुक गुड, मे बी एक चम्मच. सो आप चाहे तो वो बात में बोल सकते हैं कि एक चम्मच पानी में try to crush the tablet and mix it in 1 tablespoon of water or 2 tablespoon of water and make him drink it, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म है and it won't hurt his throat. तो उससे हम लोगों ने मेडिकेशन वाला पार्ट क्लियर कर लिया है राइट. अगला आता है which was it? Yes, the diet. किस किस्म का डाइट दिया जाए. अगेन अगर मैं टैबलेट्स नहीं खा पा रहा हूँ, जो इतू से होता है, मैं डाइट में क्या खाऊंगा, तो मुझे समोसे बहुत पसंद है. बट अगर अब मैं समोसा आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी अगर मैं समोसा खाऊंगा तो स्टिचेस फटेंगे, खून बहेगी एंड मैं रोऊंगा, बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है. तो मैं कुछ भी नहीं खा सकता. मैं कुछ भी एड़ा रास्ते में दिख गया, ओह चाट, नहीं मैं नहीं खा सकता. उसकी जगह मुझे क्या खाना होगा, लिक्विड डाइट. सो इसमें आपको ये नहीं बताना है मम्मी को कि कौन सा खाना खिलाना, ग्रीन वेजिटेबल्स खिला, वो ये ना. इसमें आपको बोला है किस किस्म का खाना खिलाना है. As you know, Miss Susan, your son had the tonsillectomy and you yourself said that he was having trouble even drinking the water, right? So, to provide him food, I would suggest you to give him light. I would suggest you to give him light liquid food. Liquid food. You have to provide him with liquid diet. आप कुछ liquid खाना उसको फिलहाल के लिए दीजिएगा, जिससे उसके गले में दर्द ना हो. अब क्या दिया जाए, ठंडा, थिक से ठंडा हुआ सूप आप वो पिला सकते हो, क्योंकि सूप में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एंड एवरीथिंग होते हैं. वेजिटेबल सूप है तो देयर यू हैव इट. अगर थिक से कुक किया गया हो तो वेजिटेबल्स भी गले में नहीं लगने वाली. तो सूप्स है.
उसके अलावा जूसेस आर अवेलेबल, राइट, फ्रूट जूस, और नहीं तो मिल्क शेक ज़रा सा गाढ़ा होता है येट बिकॉज दे आर यूजुअली कोल्ड, वो यूजुअली ठंडा होता है मिल्क शेक एंड ऑल, गले में भी दर्द होगी नहीं। एंड ठंडे के बाद से आइसक्रीम, वो आइसक्रीम भी खा सकता है। यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड हिम विद आइसक्रीम्स दैट विल हेल्प टू सूदन द पेन, एंड ही ऑल्सो हैव समथिंग टेस्टी और डिलीशियस टू ईट, क्योंकि किस बच्चे को आइसक्रीम पसंद नहीं हो, माय गॉड सबको पसंद है। एंड आइसक्रीम ठंडा होने के कारण उसके गले में जो थोड़ा बहुत दर्द या अनकम्फर्टेबल उसको फीलिंग होगा वो भी सबसाइड हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, वो भी चला जाएगा, और उसको कुछ अच्छा खाने को भी मिल जाएगा। एंड फाइनली जब वो ठीक हो जाए, जब उसका कंडीशन ठीक होने लगे, जब उसको ये लिक्विड डाइट से कुछ प्रॉब्लम ना हो, तब आप चाहे तो थोड़ा सेमी सॉलिड की ओर जा सकते हो। सेमी सॉलिड मतलब जो थोड़ा बहुत गीला हो बट पूरा गीला भी नहीं है, ठीक है, तब आप उस किस्म का कुछ उसको दे सकते हो, जैसे कि पॉरेज, आप पॉरेज उसको पिला सकते हो, एंड दैट इज़ रियली गुड क्योंकि वो राइस और पानी का बना है आफ्टर ऑल, ठीक है। एंड जब फाइनली उसका गला ठीक हो गया है, अब उसको उससे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो ही कैन गो बैक टू हिज रेगुलर डाइट, जो कि जो भी हो सकता है, इट कुड बी चावल, इट कुड बी पिज्ज़ास, नो आई वोंट सजेस्ट पिज्ज़ास क्योंकि नॉट हेल्दी, तो उसके जगह यस इट इज़ नॉट हेल्दी, तो उसके जगह क्या उसका जो भी रेगुलर डाइट था, सॉलिड डाइट में भी कॉर्नफ्लेक्स एंड एवरीथिंग, ही कैन हैव देम तब तक के लिए, बट until his condition is well and until he starts to improve, only provide him with liquid diet, full stop। उससे हम लोगों ने डाइट का पोर्शन भी पूरा क्लियर कर लिया है, हम लोग का एक और टास्क चेक कंप्लीट हो चुका है। एंड देन आता है क्या, रेस्ट। आफ्टर ऑल जैसे कि मैंने कहा था थोड़ी पहले, सर्जरी खत्म हुआ है, नाउ ही कांट गो बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ, राइट, उसको रेस्ट लेना पड़ेगा, उसको थोड़ा ही हैज़ टू टेक इट ईजी, उसको थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, उसके अपने गले को थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा। अब गले को कैसे रेस्ट दिया जाए, हम लोग गले का क्या क्या उपयोग करते हैं। पहला बात, हम लोग कुछ क्रंची खाना ये सब खाते हैं, गोलगप्पे खा लिए, कुछ भी खा लिए, तो हम लोगों ने डाइट पोर्शन में क्लियर कर लिया कि नहीं, इसको हल्का खाना देना और थोड़ा लिक्विड टाइप खाना देना है जो आराम से चला जाए, ठीक है। उसके अलावा हम लोग गला क्यों इस्तेमाल करते हैं, बातें करने के लिए। मिस सूजन, आई ऑल्सो हैव टू let you know about the importance of having or taking adequate vocal rest for your son. You see, he may feel like talking to you, but right now the stitches on his throat will hurt if he keeps on talking. So please don't let him speak too much and give him sufficient vocal rest. अब इतना बोलने से काम नहीं होने वाला। जब भी आप किसी को भी बोलते हो कि वोकल रेस्ट लो या ये करो या वो करो, उन सबको कैसे किया जाए वो भी आपको बताना होगा। अब आपने बोल दिया वोकल रेस्ट करो, पर अब वोकल रेस्ट लेने बोल दिए हो, तो ये भी तो बता दो कि कैसे बात करेगा वो बेटा, लड़का कैसे अपने मम्मी से बात करेगा, हाउ इज ही गोना कम्युनिकेट। सो कैसे बोलोगे आप उसके बारे में। फॉर दैट आप बोल सकते हो कि ही कैन यूज़ पेन एंड पेपर टू कम्युनिकेट, वो लिख के आपको बता सकते हैं उसको क्या चाहिए, और नहीं तो इशारों से, पानी चाहिए, भूख लगी, कुछ खाने के लिए दो यार मम्मी, नहीं मुझे नहीं पढ़ना, ठीक है, तो इशारों से। सो आइदर ही कैन यूज़ साइन लैंग्वेजेस और ही कैन यूज़ पेन एंड पेपर टू कन्वे हिज मैसेज टू हिज मदर। तो आप बोलो कि बेटे को रेस्ट लेने बोलो एंड उसको बोलो कि पेन एंड पेपर इस्तेमाल करें, और नहीं तो इशारों से बताए कि उसको क्या चाहिए। एंड इसी बात पे हम आपको एक और बात बता देते हैं कि उसको अपने दोस्तों के साथ मत खेलने जाने दो। यस, नाउ ही मे से लाइक, वो बोल सकता है कि नहीं मैं बात नहीं करूँगा बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ, बट ठीक है, अगर तब अगर सोचे वो बात नहीं किया, तब भी अगर वो खेलेगा कूदेगा, अगर अपने शरीर को हिलाता रहेगा, इफ़ ही डज विगरस एक्टिविटीज़, इट इज़ गोना पुट स्ट्रेन ऑन हिज थ्रोट, राइट, उसके गले में स्ट्रेन पड़ेगा। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द रेस्ट। अगर वो इन सब बातों को अगर ठीक से रेस्ट नहीं लेता, तब क्या होगा, क्या हो सकता है, अब ज़रा खुद ही सोच लो। एक लड़का का गले में कुछ स्टिचेस लगे हैं, ठीक है, और अगर उसने नहीं किया, अगर उसने रेस्ट नहीं लिया और वो अपने नॉर्मल जैसा सर्जरी से पहले तक जैसा उसका ज़िंदगी था वो उसी को ही फॉलो करने लग गया, तो क्या हो सकता है, यस उसका स्टिचेस फट सकता है। अगर स्टिचेस फटी तो बहुत दर्द होगा, दर्द के साथ देयर इज़ ऑल्सो ब्लीडिंग। सोचो ज़रा, बात वो सब भूल के बात कर रहे हैं, बस बड़ा मस्त गाना गा रहे हैं बिना फॉलो किए, खून बह रहा है, ओह माय गॉड दैट्स गोना बी टेरिफाइंग। तो उसको बताना होगा कि यू हैव टू लेट द मदर नो दैट ही हैज़ टू टेक प्रॉपर रेस्ट, otherwise there's a chance that the stitches in his throat may break, which may lead to bleeding and severe pain.
एंड ब्लीडिंग है, पेन है, स्टिचेस फट चुके हैं, दैट मीन्स वुंड खुल चुका है। तो और क्या हो सकता है इन सबसे खतरनाक? इन्फेक्शन। एंड ऑल्सो ही मे कंडक्ट और ही मे गेट इन्फेक्शन, and that is a bad news because that will reduce his healing speed or his recovery rate and will also cause further complications. तो हमको ये सारे बातों को उनको बताना पड़ेगा कि अगर आप बेटा आपका ठीक से रेस्ट नहीं ले रहा है तब क्या हो सकता है, ठीक है? तो इन सबको भी आपको बताना ठीक से याद रखना होगा। लाइक डोंट स्किप ऑन दीज थिंग्स क्योंकि दीज आर इम्पॉर्टेंट। ये सब बताना उनके मम्मी को ज़रूरी है। एंड विद दैट all the tasks come to an end. But wait sir, didn't you say something about the follow-up? Follow-up किधर गया? Good question. तो अब देखो इस क्वेश्चन में फॉलोअप के बारे में कुछ नहीं कहा गया है. In fact, that was the last task. But let us assume that you feel like your 5-minute mark is yet to be reached and you need something else to fill the gap so as to avoid the अनकम्फर्टेबल साइलेंस. भाई दोनों चुप बैठे हैं सर, आप भी कुछ इंटरलोकेटर भी कुछ नहीं बोल रहा, मैं भी नहीं बैठा हूँ, तो क्या करूँ अब मैं? अगर वैसे कहीं पर आप अटक गए हो देन यू कैन ब्रिंग इन दिस फॉलोअप, क्योंकि बाय दिस पॉइंट आपका सारा टास्क कंप्लीट हो चुका है एंड यू आर ट्राइंग टू फिल दैट एक्स्ट्रा टाइम, राइट? यू नीड द फिलर एंड फॉर दैट यू कैन यूज और यू कैन ब्रिंग फॉलोअप, क्योंकि फॉलोअप आउट ऑफ टॉपिक नहीं है, भले ये टास्क में नहीं है. फॉलोअप इज समथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर. ओके, तो फॉलोअप बोलोगे तो कुछ गलती नहीं है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला. तो अब फॉलोअप कैसे एक्सप्लेन करोगे? एंड कैसे स्टार्ट करें हम लोग? यस, सो मिस सूजन, आई होप यू आर क्लियर, you are able to understand whatever I said right now. Yes, nurse, thanks a lot. Okay, and also I want to inform you about one more thing, that is the follow-up. Let's say your son faces any form of complications. In that case, I would suggest you to come and meet with the doctor. What complications am I talking about? You remember, right? Previously I mentioned about all those bleeding and pain and everything. So if your son faces any of those problems, I highly recommend you to come and meet with the doctor. ठीक है? That's it. आपको बस ये बोलना है कि अगर आपके बेटे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आता है. कौन सा कॉम्प्लिकेशन? वही कॉम्प्लिकेशन जो मैं थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था. ब्लीडिंग, स्टिच फट गया, दर्द हो रहा है. अगर ऐसा कुछ भी हो तो आप तुरंत आके डॉक्टर से मिल लीजिएगा, सो एज टू मेक श्योर कि आपके बेटे के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है. वो बस माइनरली एक हिकअप था एंड ठीक होने वाले सब कुछ. वो हुआ, दर्द था, ठीक है, ख़त्म, उसके हीलिंग को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है. जस्ट आपको मेक श्योर करने के लिए आप आके मिल के चले जाना. अगर आप वो भी बोल दोगे तो आप प्रॉबेबली आप हाईली लाइकली आपका 5 मिनट टाइम हो चुका है एंड योर टास्क इज़ ओवर. And like I said earlier, this is a known case, right? तो आप conclusion में क्या दोगे? You have to give a conclusion, right? And you also may have noticed one thing, that the child is gonna get discharged soon, right? So your conclusion has to revolve around that discharge. ठीक है? हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था कि soon इसको डिस्चार्ज मिलने वाला है. डॉक्टर एक्चुअली अभी उसी की प्रिपरेशन कर रहा है, राइट? तो आपका कंक्लूजन भी उसी के हिसाब से कुछ होना पड़ेगा. तो अगर आप कुछ भी और कंसर्न हो तो आप प्लीज़ बजर दबाइए एंड मैं आपके और आपके बेटे के हेल्प के लिए आ जाऊंगा. एंड अभी मैं जाके आपके बेटे के डिस्चार्ज का सारा पेपर वर्क एंड ऑल करने जाता हूँ. दैट्स इट, टास्क इज़ ओवर. दैट वाज द होल टास्क. आपने इस पॉइंट पे सारा टास्क कंप्लीट कर लिया है. सो आई होप आपको याद है कि इस टास्क में क्या बातचीत हुआ था. एंड इफ़ नॉट, अगेन वापस वीडियो देख लेना. Anyway, that's it for today. Thank you.